So hi guys, welcome back to another video. So in this particular video, we'll be talking about the EV two-wheeler space in India. Basically space में actually हो क्या रहा है, EV two-wheelers वाले segment में क्या हो रहा है, what are the companies they are doing and management ने क्या बात की है, आने वाले quarter में what is very important to see in this segment. So the reason I'm talking about this EV space is that we all know EV penetration क्या हो रहा है, EV के बारे में बात क्या हो रही है, and in this particular space I'll be talking about the EV two-wheelers only, not the EV vehicles, but only the EV two-wheelers, and we'll be discussing everything, the whole picture with the help of four companies: TVS Motors, Bajaj Auto, Ather, and Ola Electric. Or we'll be talking a bit about Hero MotoCorp also, but that won't be the core of the whole video. And basically हम लोग एक स्कोर कार्ड जैसा प्रेजेंट करेंगे इन चार कंपनीज का, एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दिस होल स्पेस एंड व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग, इनके नंबर्स क्या आए हैं, and आगे वाले क्वार्टर में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कंपनीज को देखना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड what the whole space is and what the companies are doing there. So yeah. So yeah, if I had to just explain what's happening around the EV two-wheeler space in India, I would like tell you like this कि उसमें जो अभी particularly उस market में जो volume growth हो रही है, that is around 22% जितना उनका volumes में growth हो रहा है EV two-wheelers में year on year. I'm talking about the FY26 numbers अभी. और इफ आई हैड टू टॉक अबाउट कि ईवी का पेनिट्रेशन कितना है टू व्हीलर मार्केट में, सो ईवी का पेनिट्रेशन इज अबाउट 6.5% ऑफ द टोटल टू व्हीलर स्पेस पे. 6.5% का ही पेनिट्रेशन है ईवी टू व्हीलर्स का. एंड सो या देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप की ये पेनिट्रेशन इंक्रीज हो, तो एक्सपेंशन का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि 6.5% है अभी तक पेनिट्रेशन. एंड ईच एंड एवरी कंपनी अपनी कॉन कॉल में ये भी बोल रही है कि दैट द ईवी टू व्हीलर का पेनिट्रेशन विल इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड. सो दैट्स देयर. एंड the top 5 companies which we'll be talking about are all these Hero, as I told you, we won't go too deep into it, but the 4 companies हम लोग जो इस पे बात करेंगे would be TVS Motor Corp, Bajaj Auto, Ather and Ola Electric. So if I had to explain these companies in very short format कि इन्होंने इनका जो numbers है वो कैसा हुआ है. So अगर आप देखो तो TVS Motor is the leader volume terms में. अभी particularly मैं volume terms पे बात करूँगा, and then we'll talk from a from the growth perspective. So volume terms में TVS Motor जो है it has it's leading. Then comes Bajaj Auto, फिर Ather Energy, and then Ola Electric. So you could consider the fact कि the top 3 companies in this whole EV का two wheeler space would be TVS Motor, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स. और अगर हम लोग YOY ग्रोथ की बात करें तो एथर इज लीडिंग द रेस विथ 82% का ग्रोथ इंजन दिखा के उन्होंने अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाया. सो इट्स द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी इन FY26 वॉल्यूम्स के मामले में. एंड देन कम्स आपका सेकंड हाईएस्ट वुड बी TVS मोटर, देन बजाज ऑटो, एंड Ola Electric is not doing that great. Obviously उनका sales has dipped, volumes में भी fall दिख रहा है, 52% से volume भी गिर गया है उनका. So again the top 3 companies in this space I would consider would be TVS Motors, Bajaj Auto and Ather Energy. So volume terms में TVS Motors is number 1, but growth perspective से YOY growth perspective से देखा जाए तो Ather is leading here with 82% YOY growth. अब ग्रोथ रैंकिंग की लाइक आई स्पोक टू यू, एथर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, फिर टीवीएस आता है, देन बजाज एंड ओला इलेक्ट्रिक में थोड़ा इश्यूज है बिकॉज देयर वॉल्यूम्स हैव डिप्ड डाउन एंड नेगेटिव में चल गया है. अब हीरो की बात करें तो हीरो इज स्टिल, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो देयर ईवी टू व्हीलर व्हीकल इज हीरो वीडा अभी. एंड उसको अभी हम लोग थोड़ा सा इस कोर स्टोरी से बाहर रखते हैं बिकॉज दे आर स्टिल इन द रैंप अप स्टेज. वो लोग बिल्डिंग फेज में है, एंड दे हैव इन देयर मैनेजमेंट के कॉन कॉल में भी उन्होंने बोला है कि इसको अभी थोड़ा सा लो प्रायोरिटी रखेंगे और धीरे धीरे, लो प्रायोरिटी इन द सेंस कि धीरे धीरे उसको बिल्डअप करेंगे. इट्स स्टिल इन द बिल्डिंग फेज. सो I'll keep this in the tracking list, and whenever it shows anything कि इसके बारे में बात कर सके आगे, I'll include it. So अभी के लिए from my perspective only मैं अभी ये 4 कंपनीज को टारगेट कर रहा हूँ. So that's the thing. Profitability के मामले में if I had to talk to you about अभी
एथर का ग्रॉस मार्जिन पॉजिटिविटी हुआ है, एंड एबिटा जो है, एबिटा में एथर का एबिटा मार्जिन अभी रिकवर होके -2.5% में पहुंच गए. दे हैवंट रीच दैट एबिटा ब्रेक इवन पॉइंट टिल नाउ. ओला इज अगेन ग्रॉस मार्जिन इज द हाईएस्ट देयर, बट एबिटा मार्जिन में अभी भी लॉस में ही है. एंड टीवीएस एंड बजाज का अगर देखा जाए तो कंपनी वाइज, फुल कंपनी वाइज दे आर एबिटा पॉजिटिव, बट वो भी फुल कंपनी वाइज ही है. टीवीएस एंड बजाज, इफ आई हैड टू टॉक टू यू अबाउट उनका जो टू व्हीलर ईवी टू व्हीलर स्पेस है, दे कंट्रीब्यूट अराउंड 7 to 8%, 7 to I guess 8 to 10% मान के चलते हैं. 8 to 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज ही कंट्रीब्यूट करता है ईवी टू व्हीलर व्हीकल्स टीवीएस और बजाज में. वाइल एथर और ओला इलेक्ट्रिक में उनका ईवी टू व्हीलर व्हीकल का सेगमेंट इज अराउंड 90 to 95% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. So that's why Ather and Ola Electric are the pure EV plays, while TVS and Bajaj are not pure EV plays. Their EV segment जो उनमें है, that is their growing segment there, और around 8 to 10% का ही वो contribution है TVS में. अब TVS क्या कहता है? TVS does not give you an exact EV two wheeler का margin profile उतना बताते नहीं है, but बजाज has said कि बजाज ने बताया कि उनका एक double digit EBITDA margin है in the total electric portfolio. अब तो उनका बजाज का total electric portfolio consists of their two wheelers as well as their three wheelers. But since the video is all about the electric the two wheeler space, बजाज का जो चेतक है, they are EBITDA neutral abhi. They haven't reached EBITDA positive. So in that case, if I had to like note down the thing, TVS does not give you anything about the EBITDA margins on the EV two wheeler space. Ather का is about -2.5%. ओला का भी माइनस में ही है कुछ, और बजाज का if I have to talk to you about चेतक का बात करें तो it's again EBITDA neutral में चल रहे हैं वो. So that's the whole margin profile and profitability snapshot of these companies here, and that's what I have written. Ather का EBITDA is still negative but improving. Ola का gross margins are high obviously, but we are talking about EBITDA margins here. EBITDA is still negative. Volumes are a test here. वॉल्यूम्स डिप हुए थे. TVS एंड बजाज का, TVS does not disclose anything, but बजाज का चेतक इज EBITDA neutral और डबल डिजिट EBITDA refers to combined टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो. सो डबल EBITDA सुन के ये मत सोचना कि बजाज ने अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल के बारे में बात किया है. नो, दे हैवंट सेड दैट. देयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में चेतक कम्स इन और वो EBITDA न्यूट्रल पे चल रहा है अभी. सो ओला की अगर बात करें तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू ईच एंड एवरी कंपनी. ओला का जो Q1 FY27 का जो टेस्ट हो जाता है, इट्स नॉट मोर अबाउट where the margins will go or where the profitability is going. For them the main test case scenario is how their volumes are growing. तो volumes इनका बहुत ज़्यादा डिप हुआ है अभी इसमें. We have already seen उनका negatively sales भी डिप हुआ है, volumes भी डिप हुआ है. वॉल्यूम में कोई ग्रोथ कहाँ डिग्रोथ ही हो रखी है. बट नाउ दे उनका जो, क्योंकि it's because they are now completely focusing on उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई यू विल बी सीइंग कि इनका मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन है इज हाई. EBITDA में अभी भी वो नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, बट स्टिल उस केस में यू विल सी कि उनका जो है देयर वॉल्यूम्स आर डिपिंग, बट अगेन देयर इज नो सेल्स ग्रोथ. सो I'll be a bit concerned with Ola, but their recovery test again comes in that what they are saying कि EBITDA break even करने के लिए they have to sell around 20,000 to 25,000 units per month. That's what their aim is for reaching EBITDA break even. और Q1 FY27 में गाइडेंस उन्होंने दे रखा है कि 40 to 45,000 का उनको ऑर्डर्स मिलेगा. एंड उनका रेवेन्यू गाइडेंस है 500 to 550 करोड़ के रेंज में उनका रेवेन्यू गाइडेंस है. सो दैट्स ऑन ओला. आई थिंक दैट्स देयर टेस्ट, दैट्स देयर गाइडेंस ऑन दिस. एंड हम लोग एक एंड में जाके पूरा हर एक कंपनी का स्नैपशॉट्स देख लेंगे. TVS और बजाज का अगेन में देखा जाए तो वी नो कि दे आर एबल टू ग्रो देयर वॉल्यूम्स. वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग हियर, बट द पॉइंट इज कि वॉल्यूम ग्रोथ की स्पीड क्या है. That's what I would want to look for these companies. इनके वॉल्यूम ग्रोथ में स्पीड आ रहा है कि नहीं. बिकॉज if you would have noticed here numbers में आप देखोगे तो
बजाज और एथर के बीच में देयर इज नॉट अ बिग गैप, वो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आई वांट टू सी दैट ये कंपनीज का जो वॉल्यूम्स तो ठीक है ग्रो हो रहा है, बट वो वॉल्यूम का ग्रोथ कितना हो रहा है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर टीवीएस एंड बजाज हियर। और अगेन ईवी टू व्हीलर्स 8 से 10% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल रेवेन्यू स्पेस। सो आई वुड वांट टू सी कि उसका दैट परसेंटेज कितना ऊपर जा रहा है, हाउ मच मोर दैट कैन कंट्रीब्यूट, बिकॉज दैट they themselves are saying that the EV two wheelers are the next growing segment. So for these two companies, I would want to see कि उनका EV two wheeler का contribution towards sales, how is that improving? And so Q1 FY27, I think that's the point here. Let's just see what the key items are for Q1 FY27 और इन companies में मुझे देखना क्या है। एथर का मुझे अब देखना है कि EBITDA कहाँ जा रहा है, इनका EBITDA margins, because अभी EBITDA margins stands at around -2.5%, -2.5%. So they are on the path of going to become break even, and so Q1 FY27 में the core important thing for me for Ather would be कि उनका जो growth हो रहा है, sales growth, volume growth में growth sustain हो, and they also reach EBITDA, they become EBITDA positive in the next quarters. That's what I will see. So उससे क्या होगा, that's again a great sign कि आप EBITDA positive में भी जा रहे हो, आपने अपने growth को भी sustain कर रखा है, you're gaining market share as well as I had showed here, 82% से उन्होंने अपना YOY volume growth दिखाया है। So I would want to see आगे जाके that this continues and they are able to like keep their they become EBITDA positive going forward. Also, that's the key element I would want to see Ather में। ओला का as I had told you, मुझे volumes में growth देखना है वापस, as they are saying कि अभी इनका around 40 to 45,000 units का target है Q1 FY27 में। And if I had to like look out at their data, उन्होंने अभी कितना दिया है, after Q4 उन्होंने बोला है अप्रैल में they did around 12,000, May में they did around 15,000, so they are around 25,000 currently है अभी with, and to like complete meet that 40 to 45,000 वाले units उनको जून में they will have to do really good again, तभी जाके उनको वो volumes पे benefit या उनका guidance meet होगा। और again देखा जाए तो अप्रैल पे they are doing 12,000 units का, और मई में they are doing 15,000 units का, they are still not reaching that 20 to 25,000 per मंथ वाला, जिसके वजह से EBITDA उनका ब्रेक इवन पे जाएगा, they are not reaching there, but again जून वाला कैसा होता है we'll have to see. So that's again an important key element to see in Q1 FY27 of how their volume growth is coming and what the management is talking about. Again their management का जो call होता है, I particularly मुझे वो उतना ट्रस्टवर्दी लगता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दे आर टू ओवर कॉन्फिडेंट आई फील, बिकॉज एक तो उनका सेल्स में ग्रोथ नहीं है, वॉल्यूम्स में ग्रोथ नहीं है, दे आर वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं, देन यू कम इन द कॉल एंड से दैट वी वोंट डू एनी एडवर्टीजमेंट्स बिकॉज वी हैव नो कंप्लेंट्स, वी आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन दिस, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट, कंपेटिटर्स से हम कंपेयर करो तो हमारा प्रोडक्ट इज द बेस्ट, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि हाँ सर्विसेज में इश्यूज होते हैं एंड ऑल, देन व्हाई आर यू सेइंग कि योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट कंपेयर टू द अदर्स। इफ I believe I think management का confidence is good, but it should reflect in the performance. So again Q1 FY27 में I want to see what's happening with Ola, उनका रजिस्ट्रेशंस कैसे जा रहा है, उनका मार्जिन कोलैप्स कितना हो रहा है, बिकॉज दे हैव सेड कि कुछ कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले में मार्जिन कोलैप्स भी हो सकता है। एंड अभी भी देखा जाए तो Q4 FY27 में दे आर बैंकिंग टू मच ऑन देयर मार्जिन्स, उनका पूरा होल स्टोरी वाज कि वी हैव शोन द हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन्स एंड एवरीथिंग, एंड EBITDA मार्जिन को EBITDA ब्रेक इवन जाने के लिए इतना सेल करेंगे, इतना सेल हो चुका है। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज फॉर Ola. Again, I'm not saying it's a bad company, but there could be a turnaround if they are able to execute what they are saying. So I'll keep a good watch on Ola as well. TVS और Bajaj का like I have said, what I want from these companies is कि आप वॉल्यूम्स पे तो ग्रोथ दिखाओगी, बट आई वुड also want कि your contribution of EV two wheelers to your total revenue sales increases, because it's currently as I said 8 to 10%. I may be wrong with the numbers, but around कहीं ना कहीं मोटा मोटी उतना ही है,
but I would want कि आपका, since you are saying कि EV two wheelers would be the next growing segment for your company, I would want कि आपका उसका जो contribution है towards total sales that increases. That's what I want to see. Scale you have proven, scale तो आपने दिखा दिया, आप volume से growth दिखा रहे हो, that's fine. The next is rising mix and better rising mix. और TVS के लिए I want कि now management starts talking about their individual EV two wheeler space में कितना margins आ रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बात करना शुरू कर दो. That's fine on Bajaj और TVS के लिए मेरे लिए ये important हो जा रहा है. Hero Vida, like I said, अभी मैं I will keep this in the watch list and again I'll keep continue करूँगा इसको देखना कि क्या हो रहा है इसमें. अभी कोर रखा नहीं इसको, but yeah, it's again a good company, and let's see how they scale up and ramp up their EV two-wheeler space. Build-up phase में है, so can't comment a lot right now, but we'll have to keep this in the track list. So I think that was the whole video on the EV two-wheeler space, what's happening, what to watch. And अगर मुझे एकदम बहुत short में reiterate करना होता तो Ather के लिए I want to see वॉल्यूम ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो ही रहे उनके. अभी तो 76% से उन्होंने शायद ग्रोथ भी दिखाई थी रेवेन्यूज पे. सो आई वांट दैट सस्टेनेबिलिटी टू कम इन, और एबिटा आप पॉजिटिव जाओ. दैट्स व्हाट आई विल सी फॉर एथर. ओला के लिए अगेन वॉल्यूम्स में ग्रोथ चाहिए. मुझे मैनेजमेंट जो बोल रहा है, दे आर टू बुलिश की वी विल बी एबल टू शो 40,000 45,000 का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. मार्जिन कंप्रेशन कितना हो रहा है वो भी देखना है मुझे, और वॉल्यूम्स में ग्रोथ हो रहा है कि नेगेटिवली चल रहा है. सो इट्स अ बैड साइन फॉर द कंपनी राइट नाउ, एंड आई वुड वांट टू सी कि इनका टर्न अराउंड होता कैसे. दैट्स अ की एलिमेंट Q1 में. TVS से बजाज के लिए आई हैड स्पोकन ऑलरेडी कि I want to see the mix increasing more towards the EV two-wheeler space, or Hero Vida I'll take a look at. So that's the video on this. I think I didn't go too deep into each and every model. I think that's the core of what I'll be seeing in this space going forward. Yeah.